اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ میں تجھے اس کا جواب دیتی ہوں، اگر تو نے کشتی میں مجھے ہرا دیا تو تجھے حق ہوگا کہ مجھے قتل کر دے۔ میں تجھ جیسے سنہری کیڑے کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اگر مجھے کشتی میں شکست دے سکتا ہے تو ضرور دے دے، اور میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تیرے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میں مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گی۔ تو اگر چاہے تو مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ عظیم نراز، میں نے بوڑھی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو یقیناً اس بات کی گواہ ہے کہ نارو نے مجھے اس بات کا حق دیا ہے کہ اگر وہ میرے ہاتھوں شکست کھا گئی تو مجھے اسے ہلاک کرنے کا پورا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ خود مجھے اپنا خون معاف کر رہی ہے۔ میری بات سن کر نراس نے ایک نہایت خوفناک قسم کا کہکا لگایا۔ میں نے اسے پہلے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی بڑی بھیانک اور غیر انسانی طرز کی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس بوڑھی سائرہ سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس خوفناک ہنسی سے ڈر جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے اس کی اس بےہودگی سے کیا فرق پڑ سکتا تھا۔ احمق تھے آبو، بوڑھی سائرہ نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا، جو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ تو سمجھتا ہے کہ تو نارو کو شکست دے سکے گا۔ شاید تجھے یہ بات نہیں معلوم کہ دنیا میں کسی عورت نے آج تک اس مرد کو جنم نہیں دیا جو نارو کو شکست دے سکے۔ نارو کے بدن کی تخلیق پتھر اور لوہے سے کی گئی ہے۔ یہ گوشت پوست کی انسان نہیں ہے۔ تو شاید اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ چونکہ وہ خلوتوں میں تیری ساتھ ہی رہ چکی ہے اس لیے تو اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا۔ بہرحال تیری یہ خام خیالی بھی بہت جلد دور ہو جائے گی جب تیرا یہ سنہرے کیڑے جیسا جسم نارو کے بھاری بھرکم بدن کی چکی میں پس کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تب تجھے معلوم ہوگا کہ نارو کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے عظیم نراز، نارو نے کہا، اس احمق کو اپنے دل کی حسرت نکال لینے تو تجھے اجازت ہے۔ مجھے شکست دینے کے بعد تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ یہ ساری گفتگو امبالو کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ وہ صورتحال سخت حیران اور پریشان نظر آتا تھا۔ تو شاید بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تیرے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ تو نارو کو شکست دے سکتا ہے؟ موت کی قربت نے شاید تیرے حواس کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ تم چاہو تو یہی سمجھ لو، میں نے مختصراً جواب دیا۔ میں دراصل اس کے ساتھ بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری باتوں کا یقین نہیں کرے گا۔ اب تو محض عملی مظاہرے کے ذریعے ہی میں ان لوگوں کو اپنی حقیقت سے روشناس کر سکتا تھا۔ صبح کو میرے اور امبالو کے لیے کھانا لایا گیا۔ یہ گویا ان لوگوں کے نزدیک میری زندگی کا آخری کھانا تھا۔ میں تو جس دن سے یہاں قید ہوا تھا اس دن سے میں نے سوائے پھلوں کے اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ البتہ امبالو پھلوں کے علاوہ کچا گوشت بھی بڑی رغبت سے کھاتا رہا تھا۔ میں نے اس وقت بھی صرف پھلوں پر گزارا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلح عورتوں کی ایک جمعیت جھونپڑے میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اور امبالو کو اپنے نرغے میں لے کر جھونپڑے سے باہر نکالا۔ خوفناک کتوں کا جمع غفیر عورتوں کے پیچھے پیچھے تھا۔ مردوں کی وادی میں موجود باقی 8 مردوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ کشتی کا منظر دیکھنے کے لیے سب کا موجود ہونا ضروری تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مردوں کے چہروں پر رنج و الم کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ شاید سب کے سب میری قسمت کے فیصلے سے پہلے ہی واقف تھے۔ انہیں یقین تھا کہ نارو مجھے چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دے گی، جس طرح مجھ سے پہلے وہ بہت سے مردوں کا کچومر بنا چکی تھی۔ اپنے ایک ہم جنس کا ہونے والا حشر یقیناً انہیں خاصا تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ مسلح عورتوں کے نرغے میں ہمارا جلوس مردوں کی وادی سے روانہ ہوا۔ کتے ہمارے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ہم لوگ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد پھر دوسری طرف اترنے لگے۔ کتے پہاڑی پر ہی کھڑے رہ گئے تھے۔ غالباً اب ان کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ پہاڑی کی چوٹی سے بستی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تقریباً ساری کی ساری عورتیں میدان میں جمع تھیں۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میدان تک جا پہنچے۔ ہمیں دیکھتے ہی عورتیں عجیب و غریب نعرے لگانے لگی۔ وہ عظیم شگان، عظیم نراس اور معزز نارو کے نام کے نعرے لگا رہی تھی۔ میدان کے وسط میں زمین کو ہموار کر کے نرم کر دیا گیا تھا۔ یہ گویا ایک قسم کا اکھاڑا تھا
जिसमें मेरी और नारो की कुश्ती होने वाली थी। अखाड़े के करीब सबसे आगे बूढ़ी सायरा निराज खड़ी हुई थी, जो कीना तो नजरों से मुझे घूर रही थी। निराज के पीछे नारो खड़ी थी। उसके स्याह फाम जिस्म पर इस कदर तेल मला हुआ था कि उसका जिस्म सूरज की रोशनी में बाकायदा स्याह शीशे की तरह चमक रहा था। मुझे यकीन है कि अजीम निराज और मुअज़्ज़ज़ नारो को अपने वादे याद होंगे। मैंने उन दोनों की कड़वी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं नारो को शिकस्त दे सका तो फिर कबीले की इस सरदार औरत की मौत मेरे हाथों वाक़ई होगी। निराज की भयानक और गैर इंसानी हंसी की आवाज एक बार फिर गूंजी और इस मर्तबा उसकी हंसी में कबीले की दूसरी औरतें भी शरीक थीं। अलबत्ता मैंने ये महसूस किया कि खुद नारो इस हंसी में शरीक नहीं थी। मुझे इस बात का अफसोस है टेयाबू कि तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा, नारो ने ठहरे हुए लहजे में कहा। असल में प्रोफेसर डम्बाला की रूह मेरे जिस्म से निकालने के बाद उन्होंने मेरा नाम टेयाबू कर दिया था। तेरे मरने के बाद अब इसे तेरी जगह लेनी होगी। हमें 10 मर्द चाहिए, सिर्फ 10 मर्द। अगर तूने गद्दारी न की होती तो तुझे जिंदा देखकर मुझे खुशी होती, लेकिन अजीम देवता और अजीम निराज का हुक्म यही है और मैं इनके हुक्म की अदना गुलाम हूँ। लिहाजा अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने देखा कि एक तरफ कुर्बानी का बाकायदा वैसा ही इंतजाम मौजूद था जैसा मैं अपनी यहाँ आमद के मौका पर पहली बार देख चुका था। तेज धार वाला हथियार निराज के हाथ में मौजूद था। एक तरफ बड़े से बर्तन में मशरूब भी मौजूद था। इसके करीब छोटे छोटे प्याले भी रखे हुए थे। अगर तू जीत गया तो नारों को हलाक कर सकता है। बूढ़ी नाराज ने तहकीर अमेज अंदाज में एक बार फिर कहकर लगाते हुए कहा, मैं और नारो अपने वादे पर कायम हैं और हाँ, एक नजर इसे भी देख ले। बूढ़ी सायरा ने एक नौजवान लड़के को जो उसके करीब ही खड़ा हुआ था पकड़कर मेरे सामने करते हुए कहा, यह अबलामा है, अब यह बालिग हो चुका है। अबलामा ने और मैंने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में तोला। वो एक बिल्कुल कमसिन लड़का था, लेकिन उसका जिस्म बड़ा घुटा हुआ और मजबूत नजर आता था। मैंने उसकी निगाहों में अपने लिए बिल्कुल लाताल्लुकी के जज्बात पाए। गालिबन उसे मेरी जिंदगी या मौत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने जवानी की दुनिया में पहला पहला कदम रखा था। वो नया नया मर्द बना था। अभी उसके पास ये बात सोचने का वक्त नहीं था कि एक दिन उसका अंजाम भी इन ही सैकड़ों मर्दों की तरह होगा जो इससे पहले शगान देवता की भीड़ चढ़ाए जा चुके हैं। चल मैदान में आ जा, बूढ़ी सायरा ने मुझे ललकार कर कहा। इसके अंदाज से ऐसा महसूस होता था कि गोया वो खुद ही मुझसे कुश्ती लड़ना चाहती है। आज इस कबीले की औरतों और मर्दों को एक बहुत लंबी मुद्दत के बाद एक दिलचस्प खेल देखने का मौका मिलेगा। अरसा हुआ कि नारो की किसी मर्द से कुश्ती नहीं हुई, क्योंकि नारो ने मुद्दत से किसी को इस काबिल ही नहीं समझा कि इसे मुकाबले की दावत थी। अब यह देखना है कि इस पहाड़ से टकराकर तेरा क्या हशर होता है। निराज की हदायत पर मैं मैदान के वस्त में कच्ची और भुरभुरी जमीन के बीच में आकर खड़ा हो गया और मैंने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। मैंने एक नज़र अपने जिस्म पर डाली। सूरज की झुलसा देने वाली रोशनी में मेरा सुनहरा जिस्म कुंदन की तरह दमक रहा था। कबीले के सारे मर्द एक तरफ खड़े हुए थे और इन्हीं में अंबालो भी शामिल था, जो हथियार बंद औरतों के नरगे में था। वो सब के सब बिल्कुल खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। मेरे मैदान में उतर आने के बाद निराज ने नारो को इशारा किया और वो बड़े पुरवकार अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई मैदान में उतर आई। वह मुझसे कोई 10-12 फुट के फासले पर रुक गई और खड़ी नजरों से मुझे घूरने लगी। मैंने अपने कदमों को ज्यादा सख्ती से जमीन के अंदर जमा दिया। यकायक नारो ने एक वहशियाना और हैवानी नारा बुलंद किया और उसका पहाड़ जैसा जिस्म गैर मामूली तेजी के साथ अपनी जगह से हिला और मुझ पर ढह पड़ा। मैंने अपनी जगह से 1 इंच भी जुम्बिश नहीं की, लेकिन मेरे बदन के साथ तसादुम के नतीजे में नारो के जिस्म की हड्डियां तक हिल गई। वो एक हल्की सी कराह के साथ मुझसे अलग हो गई और पीछे हटते ही उसने दोबारा हमला किया और अपने मोटे मोटे बाजू मेरी कमर के गिर्द हायल करके मुझे नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। मैं जमीन में गड़े हुए किसी सतून की तरह अपनी जगह पर साकत और सामत खड़ा रहा। नारो ने अपने बदन का पूरा जोर सर्फ कर दिया, लेकिन वो मुझे हिला तक न सकी। उसकी सांसें तेज हो गई और वो हाँपने लगी। नारो तो अपनी जद्दोजहद में मसरूफ थी और मैं लाताल्लुकी के से अंदाज में अपने इर्द गिर्द खड़े हुए इंसानों के चेहरों को देख रहा था। निराज का चेहरा वहशत से ज़्यादा नजर आ रहा था। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सरा सहमगी की झलक देखी। बाकी औरतें भी हैर से मुंह फाड़े ये मंजर देख रही थी। ये सब कुछ उनके लिए नाकाबिले यकीन था। फिर मैंने अंबालो को देखा। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें फटी हुई थी, गोया वो किसी नशे किसी कैफियत में हो। बाकी मर्दों के चेहरों पर मुझे हैरत भरी
मुस्कुराहटें नजर आ रही थी। काफी देर तक जोर आजमाई करने के बाद नारो एक बार फिर पीछे हट गई। अब उसकी आंखों में मुझे साफ तौर पर बेयकीनी और हैरत और खौफ की झलक नजर आ रही थी, लेकिन जाहिर है कि उसने अभी हार नहीं मानी थी, और वो हार मान भी कैसे सकती थी। इसे तो अपने ख्याल के मुताबिक अजीम देवता शैगान और उसकी नुमाइंदा निरास की आशीर्वाद हासिल थी, और फिर कबीले की सारी औरतों और मर्दों के दरमियान वो किस तरह खुद को कमतर तस्लीम कर सकती थी। नारो मुझसे हटकर फिर काफी पीछे चली गई और फिर वहां से तेजी के साथ दौड़ती हुई मेरी तरफ आई, और उसने उछलकर पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर अपनी गुजर जैसी लात रसीद की। यकीन करो प्रोफेसर, अगर तवाना से तवाना मर्द भी होता तो उसके दोनों जबड़ों की हड्डियां टूट जाती और शायद पूरी बत्ती सी बाहर निकल आती, लेकिन मेरे जिस्म ने इस बार भी जुम्बिश नहीं की। मैंने नारो को हाथ भी नहीं लगाया और वो अपने जोर में खुद ही जमीन पर गिर पड़ी। और फिर प्रोफेसर, मैंने इस किस्से को खत्म करने का फैसला कर लिया। काफी देर हो गई थी, हर एक के मुंह से हैरत भरी चीखें निकल रही थी। अब मैं इनकी हैरानी को खत्म कर देना चाहता था। चुनाचे इस बार जैसे ही नारो नीचे गिरी, मैंने एक पैर उठाकर उसकी पुष्ट पर रख दिया, क्योंकि वो पेट के बल गिरी थी। नारो ने अपने जिस्म को जोर जोर से झटके दिए। वो बुरी तरह हाथ पांव मार रही थी और इसका पहाड़ जैसा जिस्म मेरे सिर्फ एक पैर के बोझ तले बुरी तरह तिलमिला रहा था, लेकिन वो खुद को आजाद नहीं करवा पा रही थी। फिर उसने नीचे ही से दोनों हाथ बढ़ाकर मेरे पैर को पकड़ लिया और इसे बुरी तरह झंझोड़ कर खुद को इसके नीचे से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाहिर है कि यह सब कुछ बेसुध था। मजमा में से खौफ और हैरत की नाकाबिले फहम आवाजें आ रही थीं और निराश की आंखें दहशत के मारे फैल गई थी। आखिर मैंने थोड़ी देर के बाद खुद ही नारो के पुष्ट पर से अपना पैर हटा लिया। पैर का बोझ हटते ही नारो उछल कर खड़ी हो गई और मुझसे दूर हट गई, लेकिन इस बार मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया और फिर दूसरे लम्हे उसका हाथी जैसा जिस्म मेरे दोनों हाथों में था, जिसे मैंने अपने सर से ऊंचा उठा रखा था। मजमा में से चीखें निकलने लगी। बूढ़ी सायरा जो अब तक खड़ी हुई थी अचानक बैठ गई। नारो के जिस्म ने अब हर किस्म की हरकत बंद कर दी थी। उसने गोया अपनी शिकस्त कबूल करके खुद को मेरे हवाले कर दिया था। किसी भारी भरकम और स्याह रंग के दरख्त के तने की तरह उसका जिस्म मेरे दोनों हाथों पर बुलंद था। मैंने उसे पूरे मैदान में कई चक्कर दिए। जिस तरफ से मैं गुजरता औरतों और मर्दों की चीखें निकल जाती। नारो एक बेजान लाशे की तरह बेहिस्सो हरकत हो गई थी। बिलाकर मैंने नारो के नीम मुर्दा जिस्म को बड़ी आहिस्तगी के साथ निराश के कदमों में डाल दिया, जो मैदान के किनारे बैठी हुई थी। नारो बेहरकत पड़ी रही, उसने उठने की कोशिश नहीं की। उसका स्याह चेहरा और भी ज्यादा स्याह हो गया था और उसकी आंखें जैसे पथरा गई थी। अजीम निराश, नारो ने बहुत धीमी आवाज में निराश को मुखातिब करते हुए कहा, ट्याबो को इजाजत थी कि वो मुझे कत्ल करते। हम दोनों को अपना वादा पूरा करना चाहिए। ट्याबो, निराश ने लरजती हुई आवाज में कहा, निराश झूठ नहीं बोल सकती और ना ही वादा खिलाफी कर सकती है। तूने वाकई नारो को शिकस्त दे दी है तो उसे कत्ल कर सकता है। अगर शैगान देवता की यही मर्जी है तो इसमें हमारा कोई दखल नहीं। देवता शायद यही चाहता है। देवता नहीं चाहता अजीम निराश, मैं निराश से मुखातिब होकर कहा। देवता ये चाहता है कि नारो जिंदा रहे, इसलिए इसे मैं कत्ल नहीं करूंगा। क्या कहा तू? मुझे कत्ल नहीं करेगा? नारो एकदम उठकर बैठ गई। इसे गोया मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें हलाक करने की कोई जरूरत महसूस नहीं करता। मैंने तुमसे और अजीम निराश से जो वादा लिया था उसकी हकीकत इससे ज्यादा और कुछ नहीं थी कि मैं तुम्हारा गरूर तोड़ना चाहता था। नारो हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। निराश भी बेयकीनी के आलम में मुझे घूर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा तारी हो गया था। लोगों की आवाजें रुक गई थीं। वो सब के सब दम बखुद रह गए थे। अचानक एक नहायत करेहा चंगाड़ की आवाज सुनाई दी और सारे लोग उस तरफ मुतवज्जा हो गए। ये आवाज करीबी जंगल की तरफ से आ रही थी। हाथी, पागल और मस्त हाथी, किसी ने कहा, और तमाम औरतें अपने झोंपड़ों की तरफ भागी, सिवाय उन औरतों के जो मुसल्ला थीं। नारो और निराश को मुसल्ला औरतों ने अपने घेरे में ले लिया। जरा देर बाद वही चिंगाड़ दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार वो ज्यादा तेज थी। इसका मतलब ये था कि पागल हाथी कुछ और करीब आ गया था। इस ससना में बाकी औरतें भी अपने अपने हथियार लेकर तेजी से इधर आ रही थी। अचानक घने दरख्तों के पीछे से दो हाथी नमूदार हुए। वो बहुत ही बड़े बड़े हाथी थे और इनका रंग गहरा सुरमई था। वो लुढ़कते हुए पहाड़ों की तरह तेजी से मजमा की तरफ बढ़े। मुसल्ला औरतों की जानिब से तीरों की एक बाढ़ मारी गई। तीर हाथियों का कुछ न बिगाड़ सके।
हाथी और गजबनाक हो गए और दिल दहला देने वाली आवाजें निकालते हुए मजमा की तरफ लपके। औरतें घबरा कर पीछे हटने लगी। एक हाथी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा। बूढ़ी निराश उसकी जद में थी। सभी औरतों ने अपने पत्थरों और हड्डियों के हथियारों से उसे रोकने की कोशिश की। निराश परेशान होकर पीछे की तरफ भागी, लेकिन हाथी की अस्दे जैसी सूंड ने लपक कर उसे अपनी लपेट में ले लिया। निराश के मुंह से एक भयानक चीख निकली। ये उस बूढ़ी सायरा के हल्क से निकलने वाली आखिरी चीख थी। हाथी ने निराश की हड्डियों जैसे नहीफ व नजात और स्याह फाम जिस्म को अपनी सूंड में लपेट लिया और फिर इस जोर से जमीन पर दे मारा कि निराश की हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी। इस असना में दोनों हाथी दीवानों की तरह झोपड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। मर्दों में भी भगदड़ मच गई थी। औरतें मुसल्ला होने के बावजूद हाथियों के करीब जाने से गुरेज कर रही थी। औरतों की एक जमीयत जो तीरों से मुसल्ला थी भागकर एक खास फासले पर पहुंच गई और उसने वहां से हाथियों पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। जिस हाथी ने निराश को हलाक किया था वो तीरों की योरिश से घबरा गया और उसने अपना रुख तब्दील कर लिया। वो पीछे की तरफ भाग रहा था, लेकिन दूसरा हाथी पेशकदमी कर रहा था। देखते ही देखते निराश को हलाक करने वाला हाथी घने दरख्तों के पीछे गायब हो गया, लेकिन दूसरा हाथी अपनी सूंड उठाकर दहशतनाक अंदाज में चीखता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो ना तो तीरों की योरिश से डर रहा था, न हथियारों से जो हर तरफ से उस पर फेंक फेंक कर मारे जा रहे थे। हर तरफ भगदड़ मच गई थी। तो प्रोफेसर कुदरत ने अचानक मुझे एक मौका फराहम कर दिया, जिससे मैंने फायदा उठाया। मैं इन लोगों के ज़हनों में खासी तब्दीलियां पैदा कर सकता था। चुनांचे मैंने हाथ के इशारे से तीर अंदाज औरतों की तरफ इशारा किया कि वो तीरों की बारिश रोक दे। औरतों के चेहरों पर हैरत के आसार नमूदार हुए। बहरहाल उन्होंने मेरी हदायत की पैरवी की और तीरों की बारिश रोक दी। मैं तेजी से दौड़ता हुआ हाथी की तरफ बढ़ा। मुझे अपनी तरफ आते देखकर हाथी और भी ज्यादा गजबनाक हो गया और बड़ी भयानक आवाज में सूंड उठाकर चिंघाड़ा। मैंने करीब पहुंचते ही उसकी ऊपर उठी हुई सूंड को पकड़ लिया और इसमें लटक गया। हाथी बेतहाशा अपनी सूंड को इधर उधर हिला रहा था और उसे मेरी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या मालूम था कि वो मेरी गिरफ्त थी, भला वो किस तरह खुद को इससे छुड़ा सकता था। मैंने एक नजर इंसानों के इस हजूम पर डाली जो दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। सारी औरतें और मर्द दम साधे खड़े हुए थे। इन सब के औसान इस कदर खता हो गए थे कि वहां से हटना भी भूल गए थे। हाथी काफी देर अपनी सूंड को इधर से उधर घुमाता रहा और मैं इत्मीनान से इधर उधर लुढ़कता रहा, गोया झूला झूल रहा हूं। और फिर अचानक ही मैंने उसकी सूंड को अपनी पूरी ताकत के साथ मरोड़ना शुरू कर दिया। हाथी की चीखें ही बड़ी भयानक हो गई थी। वो शदीद दर्द के आलम में चीख रहा था और मैं उसकी सूंड को मुसलसल बल दे रहा था, यहां तक कि हाथी दर्द से बेहाल हो गया। उसकी टांगें कांपने लगीं, वो गिरने लगा। मैंने उसकी सूंड को मरोड़ने का अमल जारी रखा और किसी रस्सी की तरह उसे बल देता गया, यहां तक कि हाथी जमीन पर बैठ गया। यूं मालूम होता था गोया वो हाथी नहीं, कोई पहाड़ी जमीन पर खड़ी है। मैंने उसकी सूंड को मरोड़कर अचानक उसके दोनों बड़े बड़े दांतों को अपने हाथों में ले लिया और जोर लगाकर उन्हें तोड़ दिया। हाथी बुरी तरह कराहता हुआ बिल्कुल निढाल हो गया। अब इसमें हिलने की कुव्वत भी बाकी नहीं रही थी।